زمان جب سے نکاح ہوا تھا یہ پہلی دفعہ زرکشا نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زمان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر پوچھنے لگا، آپ میری مرضی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتی کیا؟ کچھ چودھری صاحب نے اتنا کچھ بولا، آپ نے ایک بھی سوال نہیں کیا؟ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ زمان سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرکشا، مجھے جاننا بھی نہیں ہے، مجھے ذرا دلچسپی نہیں ہے تمہارے ماضی کے بارے میں۔ تم اس وقت میرے پاس ہو، میرے قریب ہو، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ زمان اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ اس کے پیشانی پر اپنے لبوں کا لمس محسوس کروایا، مجھے نہیں معلوم اللہ کو میری کون سی ادا پسند آئی ہے، مجھے آپ جیسا ساتھی انہوں نے دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے پوچھنا، جب جواب مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ زمان مزاحیہ انداز میں اسے جواب دینے لگا، جس پر زرکشا مسکرا دی۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں آپ کو ملوں گی؟ زرکشا اسے ایک اور سوال کرنے لگی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ تمہیں پتہ ہے زرکشا، ایک سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ اس ایک سال کے ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تم ہمیشہ مجھے یاد آتی ہو۔ میرے اللہ کو، مجھے پتہ نہیں کون سی میری ادا پسند آئی ہے کہ تم مجھے ملی ہو۔ زمان اس پر نظر جمائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارے غمگین لہجے میں اسے بتانے لگا۔ زرکشا اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتیں زرکشا کو اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کیا، کیسے؟ ملازم یزدان کو ہسپتال چھوڑتا سیدھا حویلی آ کر یہ خبر چودھری اسداللہ کو بتانے لگا۔ مراج ملک نے وہ ملازم فوراً بتانے لگا، جس پر اسداللہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو، کوئی تو اچھا کام ہوا۔ مراج ملک نے وہ ہنستے ہوئے خوشی سے کہنے لگا۔ ملازم اسے دیکھتا رہ گیا۔ چاچو؟ عیسیٰ حیرانگی سے اسے اسداللہ کو دیکھنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ زندگی عذاب کرتی تھے میری، مرے جان چھوٹے۔ اسداللہ غصے سے اسے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے اور عیسیٰ انہیں جاتا دیکھنے لگ گیا۔ مجھے اسے ہسپتال لے چلو۔ عیسیٰ فوراً اسے ملازم سے کہنے لگا، اس نے اسے دیکھا، صاحب نے منع کیا ہے۔ وہ جواب دیتا وہاں سے چلا گیا۔ عیسیٰ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ یزدان آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا نظریں آپریشن تھیٹر میں جمائے ہوئے تھا۔ اسے یہاں 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ زرگل 45 منٹ سے آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کی نظروں سے زرگل کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ اسے لگا تھا زندگی پھر ایک دفعہ اس کے ساتھ وہی کرنے والی تھی۔ کسی کی عادت اسے جیسے ہوتی تھی وہ اسے چھین لی جاتی تھی۔ شاید زرگل جس حالت میں تھی وہ صرف اسی کی وجہ سے تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ چودھری یزدان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ میں زرگل کو کھونے سے ڈرنے لگا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوگی تو ایسے لگتا ہے کہ میں اگلی سانس نہیں لے سکوں گا۔ وہ آپریشن تھیٹر پر نظریں جمائے بھیگی آنکھوں سے اسپتال پر نظریں مرکوز کیے۔ دل میں بولتا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جس سے چودھری یزدان نفرت کرتا تھا، آج وہ اسی لڑکی کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ اسے یوں بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ مزید گزر چکا تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا، بس آپریشن تھیٹر پر نظریں جمائے خاموشی سے تھا۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ اسے دیکھ کر چودھری یزدان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی؟ وہ پریشانی سے فوراً پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ چودھری صاحب ریلیکس، آپ کی بیوی ٹھیک ہے، گولی سینے کو چھوئی اور اندر نہیں گئی، جس وجہ سے بچت ہو گئی ہے۔ ویک ہونے کی وجہ سے انہیں ریکور ہونے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر بتانے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ یزدان نے سکھ کا سانس لیا۔ یزدان کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ آنکھیں بند کیے مشینوں میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ یزدان آ کر اس کے پاس بیٹھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، میری مانتی ہی نہیں ہو۔ دیکھ لیا کیا ہو گیا، وہ میرے آگے آگے۔ گولی تو مجھے کھانی چاہیے تھی، اس کے قابل بھی میں تھا، تمہیں اتنی تکلیف دی۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ اسے سن رہی تھی۔ یزدان اس کے بال ٹھیک کرتا، نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا۔ مجھے نہیں معلوم زرگل، تو میرے لیے کب اتنی اہم ہوگی، لیکن اب چودھری یزدان تمہارے بغیر ناممکن ہے۔ زرگل کے چہرے پر نظریں جمائے اسے بولا۔ زرگل آنکھیں بند کیے ہر چیز سے بے خبر تھی۔ چودھری یزدان مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مراج ملک جب سے واپس گھر آیا تھا ٹہلتے ہوئے پریشانی سے بول رہا تھا۔ صاحب، وہ کچھ نہیں کرے گا، اس کا آدمی اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ مراج نے اسے دیکھا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اسے کھونے کا، اس طرح جس طرح اس رات تھا۔ مراج ملک اس کی آنکھیں یاد کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر اس کا آدمی خاموش ہو گیا۔ صاحب، آپ پھر بھاگ جائیں، وہ فوراً اسے بولا، جس پر مراج ملک اسے دیکھنے لگ گئے۔ نہیں، بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تم نظر رکھو اس پر، مراج کہتے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے آدمی اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ اس وقت گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی۔ وہ زرگل کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ یزدان ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا، نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں آپ کو یہاں متاثر کرنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ زرگل کی کہی بات یاد کرتے ہوئے مسکرا دیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم نے کوشش بھی نہیں کی اور میں تم سے متاثر بھی ہو گیا، وہ اس پر نظر جمائے مسکرا کر کہتے ساتھ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔
कुछ देर इसे ऐसे जकटक देखते हुए जब चौधरी यजदान की आंख लगी, वो इसे मालूम ही नहीं वो इसकी टांगों पर सर रखकर सो गया। सूरज की रोशनी खिड़की के अंदर आती जरगुल के चेहरे पर पड़ी। जरगुल आंखों की जंबश के लिए बामुश्किल अपनी आंखें खोलती नजरें कमरे में घुमाने लगी। मैं कहाँ हूँ? जरगुल तकलीफ से, वीकनेस की वजह से बामुश्किल बोलने की कोशिश कर रही थी। इसकी आवाज़ पर यजदान की आंख फौरन खुली और इसने इसे देखा। खामोश रहो, कुछ मत बोलो, तुम हॉस्पिटल में हो। यजदान फौरन इसे फिक्रमंदी से कहने लगा। जरगुल इसे देखने लगी। माँ के पास क्यों नहीं? जरगुल रुक रुक कर अल्फाज अदा करते फिक्रमंदी से इसे पूछने लगी। यजदान खामोशी से देख रहा था। इसकी परेशानी में इसे किसी का ख्याल कहाँ रहा था। इसे खुद पर परेशानी सी महसूस हुई। यजदान ने जेब से फ़ोन निकाला और जुमान के नंबर पर कॉल की। जुमान दूसरी बेल के बाद फ़ोन अटेंड करते हुए यजदान ने इसका नाम लिया। मुझे काम है, तुम जरगुल को गोली लग गई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। सलमा आंटी, जरगुल की वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अकेली हैं घर, अगर तुम इनके पास चले जाओ। यजदान इसे सारी बात तफसीली अंदाज में बताते हुए बोला। ज़मान परेशान सा सुन रहा था। ज़रकशा अकेली कैसे रहेगी? ज़मान ज़रकशा पर एक नज़र डालकर कहने लगा, साथ ले जाओ भाभी को। यजदान फौरन इसे कहते साथ कहने लगा। ज़मान इसकी बात पर हामी बार कर फोन बंद कर दी। ज़मान को भेज दिया। भाभी भी साथ जा रही है, तुम परेशान ना हुआ, खामोश रहना। यजदानी से उंगली दिखाकर फोन करते हुए बोला, जिस पर जरगुल खफगी से इसे देखने लगी। मरने की हालत। जरगुल अभी मुंह से अल्फाज निकाल रही थी जब यजदान ने इसके मुंह पर फौरन हाथ रख दिया। गुल खामोश, बिल्कुल खामोश। यजदान इसके चेहरे पर हाथ रखे सख्त तेवर लिए बोला, जिस पर वो नजरें झुका गई। तभी डॉक्टर कमरे में आया। यजदान ने जरगुल के मुंह पर हाथ हटाया। आपकी वाई अब पहले से बेहतर है। आज रात अगर ये मजीद बेहतर होगी तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, वो इसे मुस्कुराकर बोले, जिस पर यजदान ने असबाद में सर हिला दिया। डॉक्टर इसे मजीद मेडिसिन लिख कर देते साथ चला गया। यजदान जरगुल के पास आकर वापस बैठ। जरगुल इसकी थकावट का अंदाजा इसके चेहरे से लगा सकती थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। इसकी आंखों में साफ पता लग रहा था। मुझे क्यों एतराज़ होगा? मुझे तो खुशी होगी किसी की मदद करके। वो मुस्कुराकर ज़मान को जवाब देने लगे, जिस पर ज़मान इसके करीब ज़रकशा की सांस रुक गई। मुझे नहीं मालूम तुम दिल की भी इतनी अच्छी हो। ज़मान मजाकिया अंदाज में इसे देखकर कहने लगा। ज़रकशा ने खफगी से इसे देखा। रहते रहते लग जाएगा पता आपको कितनी सखी दिल बीवी मिली है। वो मुँह मुड़ाते उसे देखकर जवाब देने लगी, जिस पर ज़मान मुस्कुरा दिया। मुझे लगता है यह सखी दिल सिर्फ दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। ज़मान इसके बिल्कुल पीछे खड़ा जान के करीब लब लाई इसे कहने लगा। ज़रकशा ने टेबल पर हाथ रख कर जोर दे दिया। वो क्यों? ज़रकशा कपकपाते लहजे में नासमझी से पूछने लगी। वो इसके लिए मेरा इतना दिल करता है वो तुम्हारे करीब आने को। ज़मान इसका रुख अपनी तरफ किए प्यार से कहने लगा, जिस पर ज़रकशा घबराकर पीछे हुई। इसका वजूद कांपने लग गया। आंटी के घर चलना है। ज़रकशा फौरन इसे कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। ज़मान इसे जाता देखने लग गया। सूप पीना होगा, थोड़ा दर्द होगा, मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेनी भी ज़रूरी है। यजदान इसे देखते हुए नरमी से कहने लगा। जरगुल इसे देखने लगी और उठने की कोशिश करने लगी। जरगुल के चेहरे पर तकलीफ दा तासुरात साफ वाज़ह हो रहे थे। वो परेशान सा इसे देखने लग गया। जरगुल बामुश्किल 5 मिनट के बाद बेड से पुश्त टिकाकर बैठी। यजदान ने इसे सूप पिलाना शुरू किया। जरगुल इसे देखने लगी। यजदान आराम से फूके मार मार के इसे सूप पिला रहा था, बिल्कुल बच्चों की तरह। जरगुल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें बुरी नज़र से देखने वाले शख्स भी मेरी रूह को चुभता है, तुम जुनून हो मेरा। जरगुल को यजदान की कही बात याद आई। इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम्हें मना किया था ना मैंने, गुल क्यों नहीं गई थी अंदर? यजदान इसे सूप पिलाने के बाद इसके चेहरे से तकलीफ का अंदाजा लगाते हुए पूछने लगा। आपको अकेला छोड़ देती? जरगुल फौरन इसे बोली। यजदान इसे देख रहा था। मैं यहाँ लेटना डिजर्व करता था, कितनी तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, इसके बावजूद। यजदान इसे देखते हुए शर्मिंदगी से बोला। जरगुल इसे खामोशी से देखने लग गई। अब वो कैसे बोलती, वो इसे कब का माफ़ कर चुकी थी। यजदान ने इसे मेडिसिन खिलाई। जरगुल ने खामोशी से खा ली। यजदान इसे आराम का कहने साथ कमरे से बाहर चला गया। ज़मान भाई को फ़ोन करके माँ की तबीयत का पूछ लें। जरगुल अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है, नॉर्मल बात करती बोली। यजदान ने इसे देखकर असबाद में सर हिला दिया। मुझे फिक्र हो रही है। मलक महराज कमरे में टहलते हुए चेहरे पर हाथ फेरता बोला। क्यों साहब? महराज का आदमी फौरन इसे पूछने लगा। इसने इसे देखा। चौधरी यजदान अब तक कैसे खामोश रह सकता है? 24 घंटे गुजरने वाले हैं। वो परेशानी से देखकर बताने लगा। इसके आदमी ने इसे देखा। हो सकता है साहब आपसे डर गया हो। वो फौरन इसे बोला, जिस पर मलक महराज ने इसे देखा। हाँ हो सकता है, मलक महराज हंसते हुए कहने लगा। जिसका आदमी भी मुस्कुराया। अगर डर गया तो फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा। वो चेहरे पर महफूज मुस्कुराहट से जाए खुद से बोलता सिगरेट निकाल कर पीने लगा। जरगुल के डिस्चार्ज पेपर तैयार थे और दोनों जरगुल के इसरार पर ही रात चूस वापस हवेली जाने का फैसला किया था। वह दोनों जा रहे थे। कुछ देर में हवेली पहुंचने ही वाले थे। जरगुल को चलने में बेहद तकलीफ हो रही थी। यजदान ने इसे देखा और इसे गोद में उठा लिया। जरगुल परेशान सी इसे देखने लगी। यजदान मैं चल लूंगी। जरगुल परेशान सी इसे देखते हुए कहने लगी। यजदान इसकी
की बात को नजरअंदाज करते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। असदुल्ला इसे ऊपर से इन दोनों को देखकर खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे और कमरे में चले गए। यजदान इसे बेड पर लाकर ज़मान को फोन मिलाने लगा, मगर फोन बंद जा रहा था। यजदान को परेशानी से हुई, क्या हुआ? ज़मान भाई ने फोन नहीं उठाया? जरगुल इसे देखते हुए पूछने लगी। यजदान ने नफी में सर हिला दिया। सब ठीक है? जरगुल परेशान होती हुई यजदान को देखकर पूछने लगी। यजदान इस बात में सर हिला गया। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। यजदान इसे तसल्ली बख्शते हुए फौरन इसे कहने लगा, जिस पर जरगुल भी सर को खम दे गई। इनका बुखार बहुत तेज है। जरकशा परेशान सी ज़मान को देखते हुए कहने लगी। ज़मान ने इसे देखा करो जानने वाला है वो मेरा। ज़मान फौरन इसे पूछने लगा, जिस पर जरकशा इस बात में सर हिला गई। ज़मान ने फ़ोन देखा, बैटरी लो थी। वो परेशान सा हुआ, फिर बाहर जाकर गाड़ी में चार्ज निकाल कर वापस अंदर आया। फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया, थोड़ा चार्ज हो जाए फ़ोन। ज़मान इसे देखकर बोलता खामोशी से वही बैठ गया। जरकशा सलमा मोहतरमा के सर पर ठंडी पट्टियाँ रख बुखार कम करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में ज़मान का फ़ोन चार्ज हो गया। इसने यजदान को फ़ोन किया और देखा यजदान को बाद में फ़ोन करता सोचकर वो अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन मिला गया। यार मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ज़मान ने फ़ोन मिलाकर इसे बोला। वो 15 मिनट को कहता फ़ोन रख गया। वो आ रहा है, ज़मान जरकशा को बताने लगा, जिस पर वो इस बात में सर हिला। तुम्हें भूख लगी है? ज़मान इसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर जरकशा ने इसे देखा लगी तो वो इसे देखकर जवाब देने लगा। ज़मान मुस्कुराकर बाहर की तरफ बढ़ गया। जरकशा जानती थी वो खाना लेने गया है। 10 मिनट में वो हाथ में लिए खानागार वापस आया और अंदर आकर जरकशा को थमा गया और मुस्कुरा दी। तभी इसका दोस्त डॉक्टर सलमा मोहतरमा के घर आ गया। ज़मान इसे अंदर लाया और सलमा बेगम को चेक करने लगा। यजदान ने ज़मान को फिर फ़ोन किया। जरगुल के कहने पर तीसरी चौथी बेल पर फ़ोन उठाया गया। ज़मान आंटी की तबीयत कैसी है? वो इसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगा, जिस पर ज़मान का कोई जवाब नहीं है। ज़मान क्या हुआ है? जवाब दे। यजदान परेशानी से इसे फिर से पूछने लगा, जिस पर ज़मान ने गहरी सांस ली। यजदान खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया। जरगुल परेशानी से इसे देखने लग गई। ज़मान मुझे साफ साफ बताओ। यजदान बाहर आते हुए परेशानी से पूछने लगा। सलमा आंटी का बुखार बहुत तेज़ हो गया था। यजदान इनकी डेथ हो गई है। ज़मान यजदान को संजीदगी से मुश्किल बता सका। जरकशा सलमा मोहतरमा के पास बैठी आंसू बहा रही थी। यजदान इसकी बात सुनकर अपनी जगह साकत हो गया। यजदान ने फ़ोन बंद किया और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यजदान कमरे से जरगुल की आवाज़ आती। इसने अपने कमरे की जानब नजरें की और एक गहरा सांस लेते हुए हिम्मत से अंदर गया। क्या हुआ? ज़मान भाई ने क्या बताया है? जरगुल परेशानी से देखते हुए बेचैनी से पूछने लगी। गुल। यजदान इसे नरमी से पुकारने लगा। गुल की नज़रें इस पर जमी हुई थी। आंटी की डेथ हो गई है। यजदान एक ही सांस में बोलकर इसे देखने लगा। जरगुल इसी तरह बैठी इसे देख रही थी। गुल 2 मिनट तक, जब तक जरगुल ने कोई हरकत नहीं की तो यजदान इसके पास आकर बैठकर अपने में आओ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरगुल की आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगा। वो बेबसी से बोल रही थी, संभालो खुद को जरगुल। यजदान इसके चेहरे पर दोनों हाथ रखे इसे कहने लगा, जिसे भीगी हुई आंखें इसी पर मरकूज थी। नहीं माँ, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे कैसे छोड़कर जाएगी? मजाक कर रहे हैं ना आप? जरगुल ज़ारो को तार रोते हुए बोलते साथ इसके सीने में लग गई। यजदान मायूसी से देख रहा था। माँ को खोने की तकलीफ कितनी होती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जरगुल खुद को देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यजदान इसकी फिक्र करते हुए बाल ठीक करता इसे कहने लगा, मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? वो यजदान को देखते हुए रोते हुए चीख कर पूछने लगी। यजदान परेशान से इसे देख रहा था। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे लेकर जाएं यजदान। वो इसे देखते हुए फौरन से बोली। यजदान खामोशी सा इसे देख रहा था। तुम चल लोगी? यजदान अभी बोल रहा था जब जरगुल एकदम उठ खड़ी हुई। मेरी माँ मुझे छोड़ गई और आप कह रहे हैं मैं चल लूँगी? नहीं लेकर जाना चाहते तो नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जरगुल इसे खफगी से देखते हुए बोलती, आंसू साफ करते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगी। यजदान ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। हम चल रहे हैं। यजदान इसे देखकर कहते साथ इसका हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए बाहर की तरफ बढ़ गया। सुनो, चौधरी असदुल्ला अपने मुलाजिम को इशारा करते हुए बोले। मुलाजिम फौरन इनकी तरफ आया। यजदान, इस लड़की का पीछा करो और मुझे बताओ ये कहाँ जा रही हैं? चौधरी असदुल्ला अपने मुलाजिम को हुक्म देते साथ कमरे की तरफ बढ़ गए और इस बात में सर हिलाकर खामोशी से चला गया। जरकशा रिलैक्स। वो इसे रोता हुआ पाकर नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखे कहने लगा। जरकशा ने इसे देखा। जरगुल को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो इसे देखते हुए भीगी हुई आवाज़ में कहने लगा, जिस पर ज़मान ने इसके आंसू साफ किए। ज़िंदगी में एक ना एक दिन सब ने ही जाना है। यजदान ही ना साथ वो संभाल लेगा। ज़मान से देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। जरकशा सर को खम दे गई। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद है जरकशा। वह नरमी से इसका आंसू पूछते हुए इसे देख कर बोला। जरकशा इसे खामोशी से देख रही थी। ज़मान इसकी आंखों पर बारी बारी अपने होठों के लम्स महसूस
करवा गया। वो शख्स इसे हमेशा अपनी बातों से खुद पर रश्क करने पर मजबूर करता है। वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर इसे देख रही थी। तभी जरगुल और यज़दान घर में दाखिल हुए और ज़मान ने इसे देखा। जरगुल फौरन सलमा मोहतरमा की तरफ भागकर इसके सीने पर सर रखकर ज़ारो कतार रोने लगी। माँ, आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर कल रात मैं ना आपको छोड़कर आती तो आज ऐसा ना होता। प्लीज़ माँ, आंखें खोले, मैं बहुत ख्याल रखूँगी आपका। वो रोते हुए इन्हें देखकर मुसलसल बोलती चली गई। ज़मान, यज़दान ज़रकशा खामोशी से साइड पर खड़े इसे देख रहे थे। यज़दान, ज़मान ने इसे देखते हुए पुकारा। यज़दान ने सर को खम कर दिया। संभाल भाभी अपने आप को, वो इसे देखते हुए बोला। यज़दान नफ़ी में सर हिला रोने दे सुकून से। यज़दान इसे जवाब देता सीने पर बाजू बांधे जरगुल को देखने लगा। 2 हफ्ते के गए हाशमी साहब अब घर आए थे और रोने की आवाज़ सुनकर परेशान हुए। यज़दान की नज़र इन पर गई जो बिखरी हुई हालत में इनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्या हुआ है? वो सब बेखबर परेशान से पूछने लगे। यज़दान ने इन्हें देखा। हाशमी साहब की आवाज़ पर जरगुल ने इनकी तरफ देखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? जरगुल सुर्ख आंखें लिए गुस्से से हाशमी साहब की तरफ बढ़कर चीख कर बोली। वो घबरा गए। क्या हो गया है? पागल हो गई हो? मेरा घर है। वो बालों पर हाथ फेरे गुस्से से जरगुल को कहने लगे। जब जरगुल हंसने लग गई। इसी आप अपना घर कहती हैं जिसका ख्याल भी नहीं रख सकते? आपको मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, पता है आपको? जरगुल इंतहाई गुस्से से चीख कर सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से बोली। हाशमी साहब परेशान हुए। जरगुल के सीने पर दर्द उठा। इसने फौरन इधर हाथ रखा और यज़दान ने फौरन जरगुल को संभाल लिया। गुल, संभालो अपने आप को। यज़दान इसे संभालते हुए बोला। हाशमी साहब साकत से खड़े थे। जरगुल का सर चकराया और वो बेहोश हो गई। गुल, गुल। यज़दान इसकी गाल थपथपाते हुए इसे पुकारने लगा, मगर वो बेहोश सी इसकी बाहों में थी। यज़दान ने इसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़कर बेड पर लटा दिया। घड़ी उस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। जरगुल अभी तक बेहोश थी, बेड पर लेटी हुई थी। यज़दान इसके पास ही मौजूद था जबकि सलमा बेगम को दफना दिया। घर में गहरी खामोशी से छाई हुई थी। ज़रकशा, ज़मान, यज़दान और हाशमी साहब बिल्कुल खामोश बैठे थे। जरगुल को जैसे ही होश आया इसने नजरें इर्द गिर्द घुमाई, यज़दान पर नजर डाली। माँ, वो फौरन इसे उठकर सलमा मोहतरमा को पुकारती बाहर की तरफ बढ़ने लगी। गुल, वो नहीं रही, वो दफना आए हैं हम इन्हें। यज़दान इसे बाहर जाने से रोककर अफसोस से बताने लगा। जरगुल इसे देखने लगी। आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? मेरी माँ को मुझे देखने तो देते। वो इसे देखते हुए भीगी आवाज़ में बोलती एकदम चीख उठी। यज़दान उस वक्त इसकी हालत समझ सकता था, इसलिए खामोशी से इसे देखता रहा। मेरी ज़िंदगी में ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप आते, ना मेरे साथ ये सब कुछ होता। जरगुल इसकी कैद से निकलकर उंगली दिखाकर इसे बोली। यज़दान इसे देखने लगा। मेरी माँ सिर्फ आपकी वजह से मुझे छोड़कर गई है। वो उसे देखते हुए अपने आंसू साफ करती बोली। ज़मान, ज़रकशा, हाशमी साहब बाहर खामोशी बैठे थे। यज़दान अभी इसे पुकार रहा था जब जरगुल ने फौरन इसके हाथ रखकर रोक दिया। अपनी ज़बान से मेरा नाम मत ले। जरगुल से उंगली दिखाकर सुर्ख आंखें लिए गुस्से से बोली। यज़दान इसे हैरानगी से देख रहा था। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। वो आंसू पोंछते हुए सर्द लहजे में इसे कहने लगी। इसके कहे अल्फाज यज़दान को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे थे, बस ये वही जानता था। मेरी बात सुन। यज़दान इसकी तरफ बढ़कर नरमी से इसे पुकारते हुए बोला। जब जरगुल ने इसे पीछे किया। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, मुझे नहीं रहना आपके साथ, चले जाएं। जरगुल चीख कर ऊंची आवाज़ में इसे गुस्से से देखती बोली। जब यज़दान ने इसके बाजू को अपनी कैद में लिया और इसे खींचकर अपने करीब करता अपने लब इसके होंठों पर रखकर इसे खामोश करवाया, जरगुल एकदम बूकला सी गई। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बनकर ही रहना है, क्यों ना कि चौधरी यज़दान तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती सही। यज़दान इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसे बोला। जरगुल साकत से खड़ी थी। इस बात का क्या मतलब समझूं? जरगुल इसे देखते हुए नासमझी से पूछने लगी, जिस पर यज़दान इसके करीब हुआ। मतलब ये है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? मुझे नहीं पता कैसे, जब मुझे तुम बेहद अच्छी लगने लगी हो। इस दिल में कब आई ये भी नहीं पता मुझे, मगर मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। अब यज़दान इसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। जरगुल भीगी आंखों से इसे देख, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया है, आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। जरगुल इसे साफ लफ्ज़ों में अपना जवाब देने लगी। जब यज़दान ने इसकी कलाई खींचकर अपने करीब किया। नहीं, मोहब्बत तो मेरे सामने क्यों आती हो? हाँ। यज़दान इसे अपने बिल्कुल करीब किए, इसके कान करीब लब लाए पूछने लगा। इसकी इस कदर करीब करने पर जरगुल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं यही करती, इंसानियत मुझ में ज़िंदा है। जरगुल आंखें बंद किए इसे जवाब देती दूर होने की मज़ाहमत करने लगी, मगर नाकाम रही। मैं नहीं मानता। वो इसे देखते हुए फ़ौरन इसे बोला। जरगुल ने आंखें खोलकर इसे देखा। नहीं मानी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं आपके साथ हवेली नहीं जाऊंगी, समझे? वो इसे देखते हुए सर्द लहजे में कहते साथ अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगे। नहीं जाना तुम्हें?
یزدان اب کی بار تھوڑا سختی سے اسے دیکھ کر بولا۔ زرگل بھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ وہی کر رہے ہیں دوبارہ جو آج سے 3 ماہ پہلے کیا آپ نے؟ زرگل اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان نے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار میں حق رکھتا ہوں، میں تمہیں خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یزدان اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے بولا۔ زرگل کی سانسیں یزدان کی سانسوں سے ٹکرائی۔ اس دفعہ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ پرانی زرگل نہیں ہوں میں۔ زرگل خود کو نارمل رکھتی، ہمت سے بولتی، اس سے الگ ہوتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل باہر آئی تو زرکشا اور زمان وہی موجود تھے۔ ہاشمی صاحب خاموش۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ زرگل ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دل سے شکریہ ادا کرنے لگی۔ زرکشا آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ اللہ آپ کو صبر دے۔ زرکشا اس کے گلے لگی، نرمی سے کہنے لگی۔ زرکشا ہلکا سا مسکرا دی۔ بھابھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ کا بھائی حاضر ہے۔ زمان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اسے دیکھ کر سر کو خم کر گئی۔ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے۔ زمان گل کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی میں ہوں نا۔ یزدان باہر آتے ہی گل کے کندھے پر ہاتھ زمان سے کہنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا۔ بالکل میرے بھائی۔ زمان اس کا کندھا تھپتھپا کر مسکرا کر کہتا زرکشا کو لیتا چلا گیا۔ زرگل انہیں جاتا دیکھ کر یزدان کے پیچھے کر کے دیکھنے آپ جائیں۔ زرگل اسے جانے کا کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زمان اور زرکشا آگے آئے۔ زرکشا بیڈ پر بیٹھی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرکشا اس بات میں سر ہلا گئی تھوڑا سا۔ وہ اسے جواب دیتے ساتھ اپنی پشت بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا گئی۔ زمان اسے دیکھنے لگ گیا۔ زرگل بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ زرکشا زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یزدان سنبھال لے گا۔ وہ اعتماد سے اسے بولتے ساتھ خود بھی اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ کتنی طبیعت خراب تھی اس کی، مجھے بہت فکر ہو رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتانے لگی۔ زمان نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ زری زمان اسے پیار بھرے لہجے میں مسکرا کر پکارنے لگا۔ زرکشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے فوراً اسے پوچھنے لگا، جس پر زرکشا اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے آپ پر بہت یقین ہے، مجھے خود پر نہیں ہے یقین، مجھے اپنی قسمت پر نہیں ہے یقین۔ 1 سال سے صرف طنز ہی سنے ہیں۔ زرکشا اسے مایوسی سے بتانے لگی۔ زمان اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ سکتا تھا۔ تم اپنا ماضی بھولنے کی کوشش کرو۔ زمان اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، جس پر زرکشا نے میں بلا چکی ہوتی لیکن یہ لوگ نہیں بلانے دیتے مجھے۔ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولی۔ زمان نے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ میں مدد کروں گا تمہاری، آج سے تمہارے ماضی کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی۔ زمان اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے بولا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ زمان نے اس کے بے داغ پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ زرکشا آنکھیں بند کر گئی۔ کیا بنا؟ کہاں گئے تھے؟ چودھری اسداللہ ٹی وی لاج میں موجود ملازم کے آتے ہی فوراً پوچھنے لگا۔ زرگل باجی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ملازم پریشان سا اسے بتانے لگا۔ عیسیٰ جو ابھی اٹھ کر باہر آیا تھا، اس نے ملازم کو دیکھا۔ اچھا، اور یزدان اور گل؟ چودھری اسداللہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ عیسیٰ وہی آ کر بیٹھ گیا۔ زرگل باجی نے چودھری صاحب کو جانے کا بولا بہت غصے سے، لیکن وہ وہی بیٹھے رہے۔ ملازم فوراً اسے بتانے لگا، جس پر چودھری اسداللہ نے اسے دیکھا۔ غصہ کیوں؟ اسداللہ فوراً اسے پوچھنے لگے، جس پر ملازم نفی میں سر ہلا گیا۔ میرے خیال سے شاید بھابھی اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار چودھری صاحب کو ٹھہرا رہی ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ چودھری اسداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی کہانی میں ایک اور ٹوسٹ، چلو دیکھتے ہیں۔ چودھری اسداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ عیسیٰ مایوس نظروں سے چودھری اسداللہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور آپ یہ سب؟ عیسیٰ فوراً اسے چودھری اسداللہ سے بولا۔ چودھری اسداللہ نہیں صاحب، کچھ نہیں پتہ لگ سکا۔ ملازم مایوسی سے بتاتے ساتھ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں ہے چودھری یزدان، وہ فوراً اسے پریشانی سے بولا، جس پر ملازم اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ اب علی میں نہیں ہے۔ ملازم نے فوراً مراج کو بتایا۔ وہ ٹہلتے ہوئے سگریٹ جلا کر پینے لگا۔ اچھا ہے، پھر تم ایسا کرو کہ اسداللہ کو ختم کر دو جب تک وہ ان سب سے بے خبر ہے۔ میں اپنا بترا لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مراج سگریٹ کے گہرے کش لگا کر دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجائے اس کی بات ماننے پر بولا۔ مراج بھی قہقہ لگا کر زرگل کمرے میں بیٹھی نظریں کمرے میں دہرا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک گزرا لمحہ اپنی ماں کے ساتھ یاد کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ قسمت نے اسے اور کیا کیا دیکھنا تھا۔ زرگل کھانا کھا لو بیٹا، ہاشمی صاحب ہاتھ میں ڈش لیے کمرے میں آتے ہوئے اسے بولا۔ زرگل نے اپنے آنسو صاف کر کے انہیں دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بھیگی آواز میں جواب دیتے ساتھ منہ پھیر گئی۔ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرو گی تو وہ بیمار ہو جاؤ گی۔ ہاشمی صاحب بیڈ پر ٹرے رکھتے ہوئے فکرمندی سے بولا۔ زرگل نے انہیں دیکھا۔ آپ کو کیوں میری فکر ہو رہی ہے؟ حیرت کی بات ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنس کر طنزیہ بولی، جس پر ہاشمی صاحب شرمندگی سے سر جھٹک گئے۔ آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں کہتے ساتھ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ہاشمی صاحب ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے ٹرے لے کر چلے گئے۔ یہ اسود کہاں ہے؟ ہاشمی صاحب ٹرے کچن میں رکھ کر پریشانی سے سوچنے لگے اور اسود کو ڈھونڈنے لگے۔ باہر چلے گئے چودھری صاحب آپ؟ ہاشمی صاحب یزدان کو باہر بیٹھا دیکھ حیرانگی سے کہنے لگے۔ یزدان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔
आप हवेली नहीं गए? हाशमी साहब लहजे में हैरानगी समाये पूछने लगे, जिस पर चौधरी यजदान ने नफी में सर हिला दिया। फिर बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर आ जाए, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। हाशमी साहब आसमान पर एक नज़र डालकर यजदान से कहने लगे। यजदान उठ खड़ा हुआ। हाशमी साहब, आप जो काम करने जा रहे हैं आप करें, मैं यहाँ ठीक हूँ। वो इन्हें संजीदगी से जवाब देते साथ खामोशी से वापस वही बैठ गया और हाशमी साहब खामोशी से वहाँ से चले गए। यजदान ने एक नज़र दरवाजे पर डाली मगर ज़रगुल बाहर नहीं आई। वो मायूसी से वापस इस तरफ बैठ गया। आप कहीं जा रहे हैं? ज़रकशा ज़ोहर की नमाज का अदा करते हुए से पूछने लगी। ज़मान ने इसकी जानब देखा। इतने प्यार से पूछेंगे तो नहीं जाऊँगा। ज़मान इसके चेहरे पर गहरी नज़रें जुमाए कहने लगा। ज़रकशा नज़रें झुकाई। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही। वो नज़रें झुकाई धीमे लहजे में कहने लगी। ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बिल्कुल आप हक रखती हैं पूरा। मैं यजदान के पास जा रहा हूँ। ज़मान इसके कंधे पर अपना बाजू हायल करते हुए बताने लगा। ज़रकशा ने इसे देखा। अच्छा, वो सुर्ख गालियाँ इसे देख कर बोली। ज़मान ने चेहरा करीब किया। ऐसे मत शर्माया करो, मेरा दिल गुस्ताखी पर उतरता है। ज़मान इसके होंठों पर फोकस करते हुए गमगीन लहजे में बोलता इसे मज़ीद घबराने पर मजबूर कर गया। यजदान बाई का इंतज़ार कर रहे थे। वो घबराते हुए कांपते लबों से इसे बोली। ज़मान इससे अलग हुआ। मैं जल्दी आ जाऊँगा। वो इसके गाल थपथपाते हुए मोहब्बत से कहता चला गया। ज़रकशा ने अपनी गाल पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा। सही मजनू बने हो तुम। ज़मान इसके पास आते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर यजदान ने सर उठाकर इसे देखा। मैं इसे हवेली साथ लेकर जाऊंगा। यजदान डिटाई से एक जवाब देते साथ दरवाजे पर नज़र डाली। सही है। ज़मान भी इसके साथ बैठकर बोला। यजदान ने इसे देखा। महाराज का क्या करना है? ज़मान इसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। ज़रगुल को एक दफ़ा घर आने दो, फिर देखूंगा। यजदान आंखों में सुर्खी लिए ज़मान को देखकर बताने लगा, जिस पर वो सर को खम दे गई। गुल हवेली चलो। यजदान इसके पास आते हुए कहने लगा। ज़रगुल ने इसे देखा। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है। यजदान आप हवेली जाएं, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो सकती है। ज़रगुल इसे देखते हुए फ़िक्रमंदी भरे लहजे में कहने लगी। यजदान इसे देख रहा था। मेरी बात नहीं माननी तुमने? यजदान इसे देखते हुए नरमी से पूछने लगा, जिस पर ज़रगुल नज़रों का ताक़ुब दूसरी सिमत कर गई। मैं अब इस हवेली में नहीं रह सकती, ज़रगुल कहते साथ दरवाज़ा बंद कर गई। यजदान दरवाजे को देखने लगा। वैसे हैरत की बात है चौधरी, यजदान भी किससे डरने लगा है। वो हंसते हुए इसके पास आता कहने लगा। यजदान ने घूर कर इसे देखा। यजदान ने गुस्से से दरवाज़ा बजाया। ज़रगुल जो अंदर जा रही थी वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ज़मान इसका कंधा थपथपा कर कहते साथ वहाँ से चला गया। यजदान दरवाजे पर नज़रें जमाए हुए खड़ा था। तभी दरवाज़ा खुला। ज़रगुल की नज़र यजदान पर गई। क्या मसला है आपका? वो इसे गुस्से से पूछने लगी। यजदान ने बगैर इधर उधर देखे इसे अपने कंधे पर उठाया और ज़बरदस्ती ले जाने लगा। यजदान, ये क्या बचकाना हरकत है? हाँ छोड़े मुझे। ज़रगुल इसकी कैद से निकलने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली। यजदान इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। यजदान छोड़े मुझे, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़रगुल इसके पेट पर थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोली। यजदान इसे गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा बंद करता लाक कर गया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगर वो चला गया, ज़मान अभी बोल रहा था जब यजदान ने इसे टोका। नहीं, वो नहीं भागेगा, इतना मैं जानता हूँ। यजदान फ़ौरन इसे जवाब देते साथ जेब से सिगरेट निकाल कर जलाता और पीने लग गया। अचानक बच्चा वहाँ से गुजरा और पत्थर ज़रगुल के दरवाजे पर दे मारा। यजदान ने इस बच्चे को देखा। वो बच्चा फ़ौरन भाग गया। ज़रगुल जो गहरी नींद सो रही थी, अचानक दरवाज़ा बजने पर नींद टूटी और वो दुपट्टा सर पर लेती बाहर की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खुला मगर सामने कोई भी नहीं था। यजदान साइड पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। यजदान की नज़र इस पर गई। ज़रगुल ने भी इसे देखा। यजदान इसे खुद को देखता पाकर सिगरेट फेंक गया। ज़मान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दरवाज़ा आपने बजाया? ज़रगुल यजदान को देखते हुए पूछने लगी। यजदान नफ़ी में सर, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ती है मुझे। यजदान गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसे देखकर कहने लगा। ज़रगुल गुस्से से इसे देख रही थी। यजदान आगे बढ़ गया। इसको बेल्ट लगाने लगा और मुस्कुराकर इसे देखने लग गया। सेफ्टी ज़रूरी है, वो मुस्कुराकर इसे कहते साथ इसके बाल ठीक करने लगा। अल्लाह करे मर जाऊँ मैं अभी। ज़रगुल इसे गौर कर देखते हुए सर्द भरे लहजे में बोली। यजदान के चेहरे के तासरात एकदम तब्दील हुए। आज के बाद ऐसी फजूल बात करने की हिम्मत न करना, समझी। यजदान अब की बात सर्द लहजा इख्तियार किए कहते साथ गाड़ी सड़क पर दोहरा गया और ज़रगुल खामोश। असदुल्ला टीवी लाउंज में टहलते हुए यजदान का इंतज़ार कर रहे थे मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ज़रगुल और यजदान आते हुए दिखाई दिए। यजदान ज़रगुल का हाथ थामे आ रहा था। चौधरी असदुल्ला इसके चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। असदुल्ला इसे पुकारने लगे। जब यजदान ने इन्हें रोका, मैं आ रहा हूँ, ज़रगुल को रूम तक छोड़कर आता हूँ। यजदान असदुल्ला का जवाब देते साथ कमरे की तरफ बढ़ा और इसे कमरे में लाया। जीना हराम कर दूंगी मैं आपका, बेहतर है मुझे वापस छोड़ आएं। ज़रगुल आंखें बड़ी किए इसे दिखाती और बोली। यजदान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे मंजूर है।
यज़दान सीने पर हाथ बांधे इसे कहने लगा, ज़रगुल मुंह बना गई, तुम्हें अब सारी जिंदगी यहाँ रहना है। वो इसे देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए बोला। ज़रगुल इसे देखने लगी। कोई मोहब्बत नहीं है, आप मुझको जिससे मोहब्बत होती है इसकी खुशी ज़्यादा अजीज़ होती है। मुझे मालूम है आपको अपना हक चाहिए, आप भी मर्द है ना, मर्दों को और चाहिए क्या। ज़रगुल गुस्से से इसे यज़दान को देखते हुए चीख कर बोली। यज़दान इसकी बात का शदीद गुस्से में आ गया। ज़रगुल यज़दान सर्द लहजे में इसका नाम पुकारा और ज़रगुल की ज़ुबान को खामोश करवा दिया। ज़ुबान संभालो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सुनूंगा। अब मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। यज़दान इसे उंगली दिखाकर लफ्ज़ों पर जोर दिए गुस्से से कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगा। ज़रगुल घबराते हुए इसे जाता देखने लग गई। चौधरी असदुल्ला बाहर खड़े इन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। यज़दान के बाहर आने के बाद एकदम चेहरे पर संजीदगी सजा ली। मैं रात में बात करता हूँ डैड आपसे, तुम क्यों किचन में हो। वह परेशान सा इसे देखते हुए पूछने लगा। ज़रकशा ने इसे देखा, बोर हो रही थी, सोचा कुछ बना लो। मुस्कुराकर इसे जवाब देते साथ हलवे में चम्मच हिलाने लगी। बोर हो रही थी तो कॉल कर लेती मुझे, मैं आ जाता, फिर बातें करते। हम इसके बालों को ठीक करते हुए प्यार से बोला। ज़रकशा ने इसे देखा, मेरे पास फ़ोन नहीं है, आप अपने दोस्त के पास गए थे, आपको तंग करना अच्छी बात तो नहीं है। उसे देखते हुए बताते साथ दोबारा हलवे पर नज़रें कर गई। तो मुझे तंग कर सकती हो। ज़मान इसके कान के करीब लाकर बोलता है। इसकी हार्ट बीट मिस कर गई और ज़रकशा खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती हलवे में चम्मच हिलाने लगी। ज़मान इसके बाजू को छूता इसके हाथ तक पहुंचकर इसके साथ हिलाने लगे। ज़रकशा का वजूद सूखे पत्ते की मानद लड़ने लगा। इसने शेल्फ पर अपना बायां हाथ जोर से रखा। ज़मान इसकी खुशबू सूंघने में मसरूफ़ हो गया। ज़मान हलवा जल जाएगा। ज़रकशा घबराते हुए इसे बोली। ज़मान ने इसे देखा था, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। वो मुस्कुराते हुए इसे कहते साथ गर्दन पर लब रखा। ज़रकशा साकत सी होगी। ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओके मैं जा रहा हूँ, हलवा जल गया तो मेरे पर सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। वो इसकी गैर होती हालत देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर बोलता वहाँ से चला गया। ज़रकशा इसके जाते ही सुख का सांस लेने लगी। ज़रगुल कमरे में इसके बाद टहल रही थी। इसे रहते रहते यज़दान का ख्याल आ रहा। पागल हो तुम ज़रगुल, पूरी की पूरी बोलने से पहले सोच तो लेती। ज़रगुल टहलते हुए खुद को कोसते हुए बोली और बेड पर बैठ गई। पता नहीं कहाँ होंगे आप, वो मुसलसल इनके मुतल्लिक सोचते हुए उंगलियां चटकाती बोली। अल्लाह ताला गुस्से में कुछ उल्टा ही ना कर ले। वो छत को तकते हुए बोलती, सर झटक कर आंसू किसी भी वक्त निकलने को तैयार थे। तभी ईसा कमरे में दाखिल हुआ और ज़रगुल की नज़र इस पर गई। आप इजाज़त लेकर नहीं आ सकते अंदर, किसी ने आपको नहीं समझाया किसी के रूम में आने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। ज़रगुल सर्द लहजे में ईसा को देखते हुए सुना गई। ईसा शर्मिंदा सा हो गया। सॉरी, मैं तो बस अफसोस करने आया था आपकी वालदा का। ईसा शर्मिंदा सा इसे बोलते हुए साथ आने की वजह बताने लगा। ज़रगुल ने इसे देखा। शुक्रिया आपका। ज़रगुल स्पाट लहजे में इसे जवाब देते साथ अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। आपको मेरी बात बुरी लगी है। ईसा इसका बदला हुआ अंदाज देकर फ़ौरन से पूछने लगा, जिस पर ज़रगुल नफ़ी में सर हिला गई। बस यज़दान को नहीं पसंद मैं आपसे बात करूं। वो इसे साफ लफ्ज़ों में जवाब देते साथ खामोशी से बेड पर बैठ गई और ईसा सर को खाम दे गया, खामोशी से कमरे से चला गया। यज़दान डेरे पर बैठा ज़रगुल की बातें सोच रहा था। इसे वाकई ज़रगुल की बातों से बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो इसके मुतल्लिक़ कितनी घटिया सोच रखती है, न जाने वो कितनी सिगरेट पी चुका था। शायद मुझसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, मैंने क्या भी तो बहुत गलत है उसके साथ। यज़दान उदासी से कहते साथ आंखें बंद कर गया। डेरे पर उस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। यज़दान दरख्त सर टिकाए आंखें मूंदे मुसलसल ज़रगुल के मुतल्लिक़ सोच रहा था। ज़रगुल बेड पर बैठी यज़दान का इंतज़ार कर रही थी, मगर इसने ना आने की कसम खाई हुई थी। घड़ी उस वक्त रात के 2 बजा रही थी। ज़रगुल आंखें बंद किए बेड के साथ सर टिकाए मज़ीद जागने की कोशिश कर रही थी, मगर वक्त गुजरता जा रहा था। यज़दान नहीं आया था। ज़रगुल इसका इंतज़ार करते करते ही इस तरह बैठी सो गई। सुबह यज़दान की आंख खुली, खुद को डेरे पर मौजूद पाया, चेहरे पर हाथ फेरने लग गया और उठकर गाड़ी में बैठता इसे स्टार्ट करता हवेली की तरफ रुख कर गया। हवेली में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नज़र ज़रगुल पर गई जो बैठे हुए सो रही थी। यज़दान इसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे का दरवाज़ा खामोशी से सोफे पर आकर लेट गया। दरवाजे बंद करने की आवाज़ पर ज़रगुल की आंख खुली और नज़रें यज़दान पर गई। इसे ठीक देखकर तसल्ली होती और फिर इसने घड़ी पर नज़र डाली जहां 5:30 हो रहे थे। फजर पढ़ने के लिए वज़ू के गर्ज बाथरूम की तरफ पड़ी। यज़दान नाश्ता करके कमरे में खामोशी से बैठता, तभी ज़रगुल कमरे में दाखिल हुई। नज़र इसके चेहरे पर गई जिस पर संजीदगी छाई हुई थी। यज़दान ज़रगुल से देखते हुए धीमे लहजे में पुकारने लगी। यज़दान इसे नज़रअंदाज करता सामने मौजूद LED ऑन कर गया। यज़दान मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो अभी बोल ही रही थी जब यज़दान LED की आवाज़ बढ़ा दी। ज़रगुल इसे देखने लगे। मुझे आपसे बात करनी है, 1 मिनट सुन ले। ज़रगुल के हाथ से रिमोट खींचकर LED बंद करते हुए ऊंची आवाज़ में कहने लगी। यज़दान ने एक नज़र इस पर
ڈالی اور نظروں کا تعاقب دوسری سمت کر لیا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی، یزدان اسے سرد لہجے میں جواب دیتے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی اور اس کے پیچھے آئی۔ ہیلو جینز کی پینٹ اور شارٹ وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو ٹیل پونی میں قید کیے، لائٹ سے میک اپ کیے وہ یزدان کو دیکھتی مسکرا کر بولی الیانا۔ وہ بے یقینی سے اس کا نام پکارنے لگا۔ الیانا مسکراتے ہوئے اپنا سامان منہ چھوڑتی اس کی طرف بڑھی۔ زرگل پریشانی سے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ الیانا یزدان کے گلے لگ گئی۔ زرگل کی آنکھیں بڑی ہوئی۔ یزدان ایک پل کے لیے خود بھی کنفیوز ہو گیا۔ یہ لندن نہیں ہے، وہ مسکرا کر اسے بتانے لگا، جس پر الیانا کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ سوری، وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ یزدان مسکرایا۔ کون ہے یہ؟ یزدان اسد اللہ نیچے آتے ہوئے فوراً اسے پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ ڈیڈی، الیانا بتایا تو تھا، میری کلاس میٹ تھی لندن میں، یزدان اسد اللہ سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، جس پر اسد اللہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہیلو انکل، وہ مسکراتے ہوئے اسد اللہ کی طرف بڑھنے لگی، جب اسد اللہ نے ہاتھ روک دیا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکے اور لڑکیاں منہ سے ہی سلام لیتے ہیں، اسد اللہ سنجیدہ لہجے میں اسے بولے، جس پر الیانا کے قدم رک گئے۔ وہ خاموش رہی۔ یہ کون ہے؟ الیانا کی نظر اچانک زرگل پر گئی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، میری بیوی۔ یزدان ایک نظر زرگل پر ڈال کر اسے بولا۔ الیانا کو حیرانگی ہوئی، تم نے شادی بھی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ وہ مزاحیہ انداز میں اسے بولی۔ زرگل کو اس کی باتوں پر غصہ آیا۔ وہ منہ بسورے ایک سائڈ پر کھڑی رہی تھی۔ بائی دا وے، یہ بہت ہی کیوٹ ہے، وہ پیار سے کہتے ساتھ زرگل کی طرف بڑھی اور اس سے ہاتھ ملایا اور زرگر مجبوراً مسکرا۔ ریڈی ہو جاؤ زری، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ آپ مجھے زری کیوں بلاتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے پوچھنے لگی۔ زمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کیوں نہ کہ مجھے تمہیں زری بلانا اچھا لگتا ہے۔ زمان اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ریڈی کیوں ہونا ہے مجھے؟ وہ اس کی بات یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یزدان نے بلایا ہے، ہماری فرینڈ آئی ہوئی ہے، زمان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ ہاں الیانا، وہ مسکرا کر اسے جواب دینے لگا، جس پر زرکشا نے سر کو خام کر دیا۔ آپ کے دوست آئے تو آپ جائیں، میرا وہاں کیا کام؟ وہ فوراً سے منہ بنائی زمان سے کہتے ساتھ اپنے بالوں کی چوٹیاں کرتے ہوئے بولی، جس پر زمان کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کوئی جل رہا ہے؟ وہ ناک پر انگلی رکھتے اسے جان کر کہنے لگا۔ زرکشا نے فوراً اسے دیکھا۔ کون؟ وہ پریشانی سے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکائے پوچھنے لگی۔ تم؟ وہ ہنس کر کہنے لگا۔ زرکشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کیوں جلوں گی آپ کی فرینڈ سے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے فوراً اسے اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی بولی، تو چل کیوں نہیں رہی ہمارے ساتھ؟ وہ اس کے پاس آتا ہی بولا، جس پر زرکشا نے اسے دیکھا۔ میں چل لیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خود کو نارمل رکھتی کندھے چکائی اسے جواب دینے لگی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھ کر اپنے قریب کیا۔ ڈونٹ وری، میں صرف تمہارا ہی ہوں، اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہتے ساتھ اپنی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ مجھے پتا ہے، وہ دل میں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زمان نے آئی برو اچکا۔ وہ ہوش میں آئی۔ میں ریڈی ہو جاؤں؟ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زمان اس سے الگ ہوا۔ زرکشا وارڈروب کی طرف بڑھی۔ زمان اور زرکشا بھی حویلی پہنچ گئے تھے۔ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ زرگل اور زرکشا بالکل خاموش تھے۔ تم دونوں نے شادی کر لی ہے، ایک تو میرا خیال کر لیتا، الیانا ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، جس پر دونوں ہنس دیے۔ زرکشا اور زرگل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تو بنا ہوگا، زمان مسکرا کر اسے جواب دینے لگا، جس پر الیانا اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم دونوں تو کچھ بولو۔ الیانا زرگل اور زرکشا کو خاموش بیٹھا دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سن ہی رہی ہیں، وہی بہت ہے۔ زرگل یزدان کو دیکھتے ہوئے جل کر بولی۔ یزدان اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، زرگل ٹھیک کہہ رہی ہے، زرکشا بھی سرد لہجے میں بولتی دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ بھائی تیری اور میری خیر نہیں ہے، زمان یزدان کو ہلکی آواز میں بولا، جس پر یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ جو بھی ہے میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، یزدان مسکراتے ہوئے اسے بولا، جس پر زمان بھی ہنس دیا۔ کیا گس پس کر رہی ہو تم دونوں؟ الیانا فوراً اسے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ دونوں نے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ زرکشا اور زمان گھر واپس آ چکے تھے۔ الیانا کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی۔ زرگل پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ تبھی یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ میرا کیا ہوگا؟ اب آئی بڑی۔ زرگل الیانا کی نقل اتارتے منہ بنا کر بولی۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہر بات پر بول رہی تھی، میری طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور اس کے ہر سوال کا جواب زرگل بیڈ شیٹ پر ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے بولتی ایک دم پلٹی۔ سامنے یزدان کو موجود دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ یزدان بغیر کچھ کہے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اف زرگل اف، وہ خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف پڑ گیا۔ ساجدہ بھی کچن کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زرگل کو دیکھ کر مسکرائی۔ کچھ چاہیے تھا زرگل؟ ساجدہ بھی مسکراتے ہوئے نرم لہجے اختیاریہ پوچھنے لگی۔ زرگل نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بھی، بس سر درد ہو رہا تھا، ایک کپ چائے بنانے آئی ہوں، وہ ساجدہ بھی کو دیکھ کر جواب دیتے ساتھ ہی میں پانی بھرنے لگی۔ جو بچی لندن سے آئی ہے اس کی وجہ سے نہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ نہیں، اس کی وجہ
क्यों है? ज़रगुल फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते हुए चूल्हा जलाकर बोली, जिस पर साजिदा भी मुस्कुराई। किस औरत को अच्छा लगेगा इसका मर्द किसी और औरत से इस कदर दोस्ताना अंदाज में बात करे? वह मुस्कुराकर ज़रगुल को देखते हुए कहने लगी। ज़रगुल खामोश रही। अब जानती हो हमारा निकाह कैसे हुआ था? ज़रगुल चाय में पत्ती और चीनी डालती इन्हें बोली। साजिदा भी इसे दूध का जग थमाने लगी। निकाह कैसे हुआ कैसे नहीं ये मायने नहीं रखता, निकाह हुआ है ये मायने रखता है। यज़दान साहब की आंखों में मैंने आपके लिए इज्जत, मोहब्बत, फ़िक्र साहब देखा है। खुश नसीब औरत को ऐसा मर्द मिलता है। साजिदा भी ज़रगुल को समझाने वाले अंदाज में बोली। जिस पर ज़रगुल ने इन्हें देखा वह मुस्कुरा दी। कोई फ़िक्र नहीं है, अगर होती फ़िक्र तो इस तरह अलियाना के सामने मुझे नज़रअंदाज ना कर रहे होते। ज़रगुल दूध डालते हुए मुंह बनाए बोली। जिस पर साजिदा भी मुस्कुराई। बेवकूफ़ रहना, वो तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा था। फ़िक्र नहीं है तो तुम कहती हो अभी कमरे में जाना और बस इतना बोलना तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है, फिर देखते हैं फ़िक्र है या नहीं। साजिदा भी मुस्कुराते हुए इसे मशवरा देती चली गई। ज़रगुल इन्हें जाता देखने लगी। ज़रकशा कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आई और ज़मान बेड पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। निकाह कैसे हुआ कैसे नहीं ये मायने नहीं रखता, निकाह हुआ है ये मायने रखता है। यज़दान साहब की आंखों में मैंने आपके लिए इज्जत, मोहब्बत, फ़िक्र साहब देखा है। खुश नसीब औरत को ऐसा मर्द मिलता है। साजिदा भी ज़रगुल को समझाने वाले अंदाज में बोली। जिस पर ज़रगुल ने इन्हें देखा वह मुस्कुरा दी। कोई फ़िक्र नहीं है, अगर होती फ़िक्र तो इस तरह अलियाना के सामने मुझे नज़रअंदाज ना कर रहे होते। ज़रगुल दूध डालते हुए मुंह बनाए बोली। जिस पर साजिदा भी मुस्कुराई। बेवकूफ़ रहना, वो तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा था। फ़िक्र नहीं है तो तुम कहती हो अभी कमरे में जाना और बस इतना बोलना तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है, फिर देखते हैं फ़िक्र है या नहीं। साजिदा भी मुस्कुराते हुए इसे मशवरा देती चली गई। ज़रगुल इन्हें जाता देखने लगी। ज़रकशा कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आई और ज़मान बेड पर बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। 1 साल मेरा इंतज़ार किया है आपने, इस अलियाना वलियाना का नहीं, वो मुंह बनाते जताते हुए वाले अंदाज में बोलती। ज़मान के दिल में सीधा उतरी। हाँ बिल्कुल। ज़मान फ़ौरन इसे इसकी बात पर हामी भरते हुए कहने लगा। जिस पर ज़रकशा इसे देखने लग गई। लेकिन नज़रअंदाज बहुत किया है मुझे, वो याद करते हुए फ़ौरन इससे बोली। ज़मान इस बार नज़रें मरकूज़ किए हुए था। ज़मान ने खींच कर करीब करके इसके लबों को हल्का सा छुआ। अचानक इत्तफाक पर ज़रकशा बुकलाई। इसके गाल खुद ब खुद सुर्ख हो गए। अब सो जाएं। वो इसे देखते हुए चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला। ज़रकशा इसे हैरत से देख रही थी। अब ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? वो सुर्ख गालियाँ नज़रें झुकाकर पूछने लगी। ज़मान इसे अपने साथ लटाता इसके गिर्द हसार बना गया।